बट स्टिल हमें जो है ना वो एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती तो काफ़ी ज़्यादा रोल्स आ गए हैं, अब तो क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा रोल्स आ गए हैं। है। ओके, Assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Raees, and welcome to Tech Gupshup with Fatma. This is episode 4, and today we are going to talk about a very emerging field for the last few years. This is DevOps, and we will be having a very special guest that has worked into this field. So let's introduce our today's guest. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Fatima. Thanks for having me. It was lovely, and thank you so much for accepting this invitation. We usually start from the beginning, that how the speaker's journey started. Same goes for this podcast also. So, who is Ahmed Tariq, and how did your journey really start? Let's get into this. Well, Ahmed Tariq currently is a cloud DevOps engineer who is certified across all the three major cloud platforms. Currently, I'm working at Excel as a DevOps engineer. I have recently joined them like 4 months ago. And before that, I was working at Tariq AI as a cloud DevOps engineer. I worked there for 2 years. And before that, I was doing some on and off jobs in the domain of cloud and DevOps. So overall, I have like 3 years of experience in cloud and DevOps. My main expertise are in GCP, Azure, and AWS, and I also work with Kubernetes. And recently, I'm also working with Gen AI, so it's quite surprising and interesting for me as well. Regarding how I started my journey, that's quite shocking, or I will say different a bit. Well, like all the people in my batch, I started as a multi-stack developer in my sixth semester, and then somehow I just got a chance to get a chance to be in the field of cloud and DevOps. And the reason behind that was someone just introduced me to this field, and I started to explore this field. And yep, it's been 3 years now, and I'm up and running in this domain, and it's quite exciting for me as well. Okay, good. So, where did you get graduated from? Well, I'm graduated from University of Management and Technology in 2022. I have done bachelor's in computer science. Okay, so it's quite recent. Okay, very well, good. Let's dive into our topic, which is DevOps. So let's introduce what is DevOps. Also, that's a very interesting question. Every software house, I will say, every country or every IT industry have their own DevOps definition. But let me just simplify it for you. I feel like DevOps is a process of making the software more efficient and optimized, and make it to available to the market and to the customers as soon as possible. And DevOps also work with the monitoring of the website and making sure that the product is up and running 24/7, and there are no delays, or user don't face any issues with their domain and applications. So I feel like DevOps is very required whenever there is application, whether it's a mobile application or a DevOps or a website application. DevOps is required, and it's optimizing the process of a software development lifecycle. So it's the need of the market nowadays, and it's kind of emerging. Okay, so you have very well explained what is DevOps. Okay, so I wanna have this question that आप DevOps के अंदर किस तरह से आए? How did your learning start into DevOps? But as I mentioned earlier, I started as a month-stack developer. But I always say people there that sometimes you have some turns in your life that completely change your life. So I do have that turn in my life in after my sixth semester when I was looking for the internship in month-stack development. One of my friend introduced me to a guy who was a DevOps architecture at Vodafone company in UK. So he mentored me for like 6 months, and then from there I started my DevOps journey. And after that, I joined a boot camp at SkipQ for like 6 months, and then from there I joined the company DatXI. So that's how I started the DevOps journey. Uh, I was going for the month stack because people in my batch were in the web, and no one in the university knows about what is DevOps, what is cloud. Everyone knows about web development or app development, which is good. All right, I'm not discouraging them, but I wanted to do something different, and I got the opportunity, and that's why I went into DevOps and cloud. And so far, it's going really well for me.
Okay, that's really good. And I think that's the importance of time as the field isn't changing, so many new fields are coming, and it's good to re have your focus on those also. Okay, so हम चलते हैं कि हम DevOps में कोई अगर एक स्टूडेंट है for me अगर मैं अपनी बात करूँ तो I'm right now a fifth semester in my third year. So अगर मेरे जैसे कोई स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि मैं डेवऑप्स मुझे सुना है मैं सेशंस में गया हूँ आजकल तो ये सेशंस वगैरह बहुत होते हैं जो कि जहाँ पर लाइक एक्सपर्ट्स आते हैं दे टॉक अबाउट दिस बट स्टिल हमें जो है ना वो एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और ये क्वेश्चन बार-बार जो है ना स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि व्हाट डायरेक्शन शुड वी टेक इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड इन दिस फील्ड सो या हाउ डू वी गेट इनटू इट Well, sessions are good, right? They are really good. They give you a chance to interact with a professional. But most of the students also reach out to me regarding how they can land a job in DevOps, and I always tell them, "Do you have those ingredients to be land to the role of DevOps and cloud?" And they always have like, "I've done this thing, and I've done this thing, I've done this project, I've done this certification," but I don't have the essence that are required to land into the DevOps job. For example, if you're a student and if I suggest you how you can land into a DevOps job, there are few ingredients I will say tell you. First of all, your Linux have to be strong, or maybe you can if you're a Windows person, then must know about the shell scripting or PowerShell scripting. So scripting is in DevOps because DevOps one of the major part of or chunk of DevOps is automation. So we done a lot of automation using scripting. Sometimes it's in Linux, sometimes it's in Word in Windows PowerShell. The second thing is you must know about your networking, right? Because DevOps and cloud, their core is networking. If you don't know about networking, you cannot do anything in the cloud because cloud, the core of the cloud is networking. The second thing I'll suggest people is to master one of the cloud. Obviously, you can't master one of the cloud, but you must know about the services that are required for example, a Web3 application. For example, if I'm deploying some Web3 tier application, then I need some database service, then I need some front end service, then I need some backend service as well, and some routing and policies and security as well. So I have to go through these services on the cloud, no, regardless which cloud I'm going, but I must know about the services that are required for the application. So after going through the cloud, the next thing you must do is you should pick up a CI/CD tool because obviously we have to automate a lot of things in DevOps, right? So you must know about some CI/CD tool. The next step is very crucial, I'll say, is monitoring and logging, right? So you have application on your cloud, you know about the Linux networking, and you have built up CI/CD. But if you don't know about the monitoring and logging of your application or the server, then if some error comes, you will not be able to debug that error because to debug some error in the application or in the server, the logging and monitorings are really crucial. And the next thing, one of the most important thing in DevOps is you should always be open to explore new things. Always keep learning about new technologies because DevOps is it's a new field and it's emerging on daily basis. So you must know how to research and search about new technologies and how to use them, because if you don't do that, then you will be outdated pretty quickly. So these are the 5 things I'll suggest people to do if you want to jump into the DevOps domain. One more thing, that you should know about some of the coding part as well, right? So if you are not a developer, uh, there are some technicalities in which you will stuck when some problem arises in a DevOps job. So you must know how to build the application. Start with a basic application, right? Like I started as a one-site developer, so I know how to build websites. I know how the backend work. I know how the front end work. So whenever some issues arises in the front end or back end or even in the database, I know how to debug them. So if you are a person who has zero knowledge about the development, then it will be crucial, then it will be tough for you to debug errors, because in DevOps, errors arises every time and unexpected things happens all the time. Okay, very well. How we have gone through these steps, and I think these steps are the crucial कि हम कैसे start कर सकते हैं इसमें.
अच्छा, हम इसमें ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आई हैड लिसन वन ऑफ द प्रोफेशनल आई थिंक लास्ट ईयर आई हैड दिस सेशन, जो कि क्लाउड आर्किटेक्ट थे, ही इज़ राइट नाउ वर्किंग इन गूगल। और वो बता रहे थे कि हाउ मच इम्पोर्टेंट डिबगिंग स्किल्स इट इज़ इन डेवऑप्स, कि हाउ गुड यू शुड बी इन डेवऑप्स। एंड वन ऑफ द थिंग दैट ही मेंशन दैट कि यू कोई भी जो बिगिनर है, जो कि लाइक सपोज अभी कोई ग्रेजुएट हुआ है, उसे डेवऑप्स के रोल जो है ना वो नहीं असाइन किए जाते, क्योंकि पूरा कंपनी का एग्जैक्टली। आर्किटेक्चर डेवऑप्स पे जो है ना वो रिलाई कर रहा होता है। तो एक ऐसे पर्सन जो कि अभी बिल्कुल न्यू है, उसको हम कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक आर्किटेक्चर नहीं दे सकते। तो इसमें हमें क्या स्टूडेंट्स को एज स्टूडेंट्स क्या मेजर अप लेना चाहिए ताकि वो इन जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकें? I think obviously बात correct है उनकी, because you can't really push someone into the big projects, वो काफी complicated हो जाता है. So I'll say कि have some technical knowledge about how the product is working. Like when I started my job at Excel, it was a big project that they hand over to me. So for the first month, I didn't do anything on the cloud. I know the things, but still I don't have the project context. So for the first month, मैंने project को overview किया. I get the product knowledge, how the infrastructure work, and then I started doing the work. So a person like me who has years of experience and उसको फिर भी एक मन चाहिए to get grab the things from the project, and तो एक beginner के लिए वो काफी tough हो जाता है. So I will say have some technical knowledge, uh, build projects and deploy them on cloud. That what you can do is right now is you can build, for example, you can build a Django application, right? A very basic Django application, and then you can containerize it, right? Using Docker, and then you can deploy it on one of the container services on cloud, right? So that way you know how the workflow work. आपको एकदम से कोडिंग में नहीं जाना डेवऑप्स स्टार्ट करने के लिए. You just have to know how. आपको एक नो हाउ होनी चाहिए कि अच्छा एक एप्लीकेशन को मैंने ऐसे डिप्लॉय करना है, देन उसको मैंने कंटेनराइज ऐसे ही करना है, देन उसको मैंने क्लाउड पे ऐसे लेके जाना है. So that's the whole workflow of the DevOps, right? आपको एकदम से मैंने कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये वेबसाइट का मॉड्यूल है, स्टार्ट कोडिंग ना, ऐसा नहीं होता है. That's the developer part. We are DevOps, right? We have a senior person in my Tixel. He's a solution architect from Microsoft. He always tell us one thing, that we are not an ops team, we are DevOps team. So apart from the operations work, we also know about something about the dev team as well, how the dev are working, how the development is working on a product. Because इस तरह आप फिर एरर्स को डिबग कर सकते हैं. अगर आपको डेवलपमेंट का नहीं पता, आप ऑपरेशंस में आ गए हैं, और फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. स्टार्टिंग में तो चीजें स्मूथ होती हैं, लेकिन जैसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है यू विल स्टक. और मैंने देखा अपनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में कि लोग फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप आपका फिफ्थ मैसेज चल रहा है, आप ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस बनाएं और उन्हें कंटेनराइज करें, उन्हें क्लाउड पे डिप्लॉय करें, EC2 पे करें, या एजूर पे करें, या फ्रंट एंड को डिप्लॉय करें, कहीं भी आप कर सकते हैं. बिकॉज एक ट्यूटोरियल बनाना है एप्लीकेशन का, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज आजकल चैट जीपीटी भी है, सो यू कैन इजिली प्लग एंड प्ले विथ इट. यस, यस, दैट्स फॉर श्योर। ओके, हम ये जो पार्ट कोडिंग वाला पार्ट है, इसके लिए हमने डेडिकेटेड क्वेश्चन भी था कि कोडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है डेवऑप्स में? I think coding आपको आनी चाहिए, राइट? यू कांट जस्ट जंप इनटू डेवऑप्स और एनी आईटी प्रोफेशनल रोल और आप कहें कि मुझे कोडिंग नहीं आती तो आई विल सर्वाइव. अगर आपने कोडिंग के बगैर सर्वाइव करना है, सो देयर इज अदर रोल्स एज वेल, राइट? यू कैन गो टू बीए और मार्केटिंग, समथिंग एल्स. आई एम नॉट डिग्रेडिंग पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइक क्लाउड में एक कॉन्सेप्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, वेयर हम लोग कोडिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर रहे होते हैं. तो उसमें भी कोडिंग रिक्वायर्ड है. अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता, अगर आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, आप पाइपलाइंस नहीं लिख सकते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोड नहीं लिख सकते. तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. कोडिंग मस्ट है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन डेप्थ कोडिंग में चले जाएं और पूरा एक वेबसाइट बना दें, लेकिन आपको एटलीस्ट बिगनर लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और अगर आप CS बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो फिर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती. हुँ। कोडिंग तो ज़ाहिर बात है, मोस्टली जब भी कोई हम टेक्निकल की बात करते हैं तो हमें कोडिंग, नो कोडिंग तो हो ही नहीं सकता। कोडिंग का कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन कितने लेवल की कोडिंग आपको आनी चाहिए, आपको कितनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए एट हाउ यू कोड, ये जो क्वेश्चन है ये यूजुअली प्रेफरेबल या आस्क किया जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स के पास। लेकिन आपको इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लेवल की कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बिगिनर की भी चल सकती है, लेकिन इंटरमीडिएट तक की होना तो
अब वो आपको प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एप्लीकेशन के कोड में एरर आ गया और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लूप लगे, फाइल डाटा कहाँ से आ रहा है, तो फिर आप स्टक हो जाएँगे। तो इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप एप्लीकेशन के कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, यस दैट्स गुड। ओके, हम अगर हम आगे चल रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को लेते हुए, तो डेवऑप्स की हमने बात की। अच्छा, अगर न्यू एक पर्सन है जो कि ग्रेजुएट होता है और वो अप्लाई करता है इस तरह के टेक्निकल रोल में, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर स्टूडेंट को किस चीज़ों की तैयारी करके जाना चाहिए ताकि वो इस रोल में जॉब लैंड कर सके? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डायरेक्टली किसी भी डेवऑप्स या के रोल में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग बट दिस इज द थिंग। कुछ टूल्स और कुछ सर्विसेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। सबनेट्स क्या होते हैं, वीपीसीज क्या होते हैं, वीपीएन्स क्या होती हैं, इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। देन लिनक्स ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्टली डेवऑप्स का काम लिनक्स पे चल रहा होता है और कुछ पावरशेल पे भी चल रहा होता है, तो आपको स्क्रिप्टिंग का पता होना चाहिए। देन आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए डेवऑप्स एक्चुअली में है क्या, राइट? अगर आपको डेवऑप्स का नहीं पता और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आपको क्लाउड का पता होना चाहिए। अब क्लाउड में मैं ये नहीं कहता कि आपको सब सर्विसेज का पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कुछ सर्विसेज पे ग्रिप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एडब्ल्यूएस के जॉब रोल के अप्लाई कर रहे हैं, सो यू मस्ट नो अबाउट EC2, S3, VPC, Route 53 सर्विसेज लाइक दिस, जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो, आपको काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ मॉनिटरिंग टूल्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी टूल्स व्हिच आर लाइक Prometheus और Grafana, आप उनको थोड़ा गो थ्रू करके जाएँ। So these are the things जो कि आई फील लाइक अगर आप एक ट्रेनी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल मस्ट गेट हायर अगर आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज है। व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस कंपनी डेटिक से आई, और जब मैं वहाँ से रिजाइन कर रहा था तो मैंने अराउंड अपनी मैं रिप्लेसमेंट देख रहा था, काइंड ऑफ इंटर्नशिप के लिए मैं स्टूडेंट्स देख रहा था। और मैंने अराउंड 60 to 50 रिज्यूमेस को गो थ्रू किया था, और मैंने अराउंड 15 इंटरव्यूज लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया था, बिकॉज़ दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेवऑप्स क्लाउड। उन्होंने दे हैव परफेक्ट रिज्यूमेस, बट रियलिटी ये थी दे नो नथिंग अबाउट द स्टफ। और मोस्टली स्टूडेंट्स डेवऑप्स में इस वजह से आते हैं बिकॉज़ दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द कोडिंग। तो एक ये भी फैक्टर है। ओके, दैट्स ओके। तो अगर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें पहले किसी टेक्निकल रोल लाइक डेवलपमेंट रोल से स्टार्ट करना चाहिए, फिर डेवऑप्स के अंदर ट्रांजिशन करना चाहिए? लाइक इफ यू आर इन योर फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर, करेक्ट? तो यू मस्ट हैव सम FIP project. Why not build a website or something, and that way you will have some technical knowledge about how the websites work, or then you can deploy it on cloud. So that way आपको 1-2 साल में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने प्रोडक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट कैसे किया, उसको मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय कैसे किया। सो वो उसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड अप कर सकते हैं। दैट कैन हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज़ you can also pitch for the cloud developer role as well, और क्लाउड इंजीनियर रोल एज़ वेल, डेवऑप्स इंजीनियर रोल एज़ वेल। क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा आप मैंने एक एप्लीकेशन को स्क्रैच से बनाया, उसको डिप्लॉय किया क्लाउड पे, तो आपको एक वर्कफ्लो का आइडिया हो जाता है। सो क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल रहता है वो आपके लिए फिर। ओके, दैट्स गुड। यूजुअली अब तो ये चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट भी की जा रही है कि यूजुअली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हमें जो है ना वो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, और अब लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में वी आर गोइंग टुवर्ड्स कि अब हम हमारे प्रोजेक्ट्स पहले लोकल या हमारे गिटहब वगैरह पे होते थे, लेकिन अब हम उसे क्लाउड पे शिफ्ट भी कर सकें और क्लाउड पे मिसलीगली होस्ट कर सकें। तो आई थिंक ये लर्निंग, लेकिन यही है कि यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, कुछ में नहीं करवाई जाती। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का जो है ना वो फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे इस यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड अप करूँगा कि डोंट एंटायरली रिलाई ऑन यूनिवर्सिटी कि दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब। यू हैव टू डू द थिंग्स एट योर ओन। आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स नहीं था जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया, तो आई एक्सप्लोर्ड द थिंग्स एट माय ओन। तो स्टूडेंट्स को अब देखना पड़ेगा कि आईटी मार्केट भी थोड़ी-सी आजकल ट्रिकी चल रही है। तो अगर आपको जॉब रोल चाहिए राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, एल्स आप एक हेल लूप में फँस जाएँगे, और वो बहुत ट्रिकी होता है आपके लिए और डिप्रेसिंग भी होता है। यस, वी आर सीइंग सम चेंजेस इन आवर मार्केट एंड सम ड्रास्टिक चेंजेस, और कुछ रोल्स जो हैं वो वैनिशिंग भी हो रहे हैं, कुछ रोल्स इमर्ज हो रहे हैं।
तो ये तो जो है वो चीज़ें देखने में मिल रही हैं। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट इनटू दिस रोल, व्हाट यू थिंक? आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना एक पिक्चराइज किया जाता है इस चीज़ को। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे इन टेक्सटाइल वी हैव अ डेवऑप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आफ्टर एवरी 3 to 4 months, और उसमें हम लोग अराउंड 20 to 30 स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, वो आर फ्रॉम लाइक 6 or 7 सेमेस्टर। और उसमें से अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वी ऑलवेज गिव देम सम रोल इन आवर कंपनी। बट जैसे अगेन प्रीवियसली भी एक बूट कैम्प आया था हमारी टेक्सल में, और अराउंड 25 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया था। राइट, सो ये कंसर्निंग बात है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है स्टूडेंट्स को और वो उसको अवेल नहीं कर रहे, राइट, यहाँ तो स्किल सेट का इशू है उनमें, या वो चीज़ों को काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा उन्हें, अगर वो इस रोल में आना चाह रहे हैं। वरना फिर उनके लिए वेब डेवलपमेंट ओपन है, ऐप डेवलपमेंट ओपन है। अगेन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट अगर आपने डेवऑप्स में आना है देन यू यू मस्ट नो, आपको इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए फिर। Yes, that is concerning these days कि हम देख रहे हैं कि लाइक हमारे जो सीनियर्स थे रिसेंटली 19 बैच के देर उसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टिल दे कैन नॉट गेट suitable job for themselves. So so our field is changing, or okay, we have to progress with it. Otherwise, if we just rely on what we are learning around and we just want to stay in the comfort zone, we will having a very difficulty uh, getting a job. ओके, आपने बताया कि यू ऑफर तो ये इंटर्नशिप प्रोसेस होता है कि जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ये अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, फिर आप उनको ट्रेन करते हैं, इस किस्म का लाइक क्या ये सिस्टम होता है आपका? इट्स अ डेवऑप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑलराइट। उसमें ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, देन वी सेलेक्ट द पीपल फॉर लाइक, इट्स अ लाइक 2 weeks or 3 weeks प्रोग्राम, जिसमें टेक्सटाइल ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को, उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि व्हाट डेवऑप्स एंड क्लाउड इज। एंड आफ्टर दैट अगर उसमें से कुछ अच्छा परफॉर्मिंग होता है, राइट, सो वी गिव देम इंटर्नशिप। जैसे लास्ट ईयर भी माय कोलीग्स वर टेलिंग मी कि कुछ स्टूडेंट्स थे, आई गेस 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ट्रेनिंग में, और हमने उन्हें फिर इंटर्नशिप दी है। नाउ दे आर वर्किंग एज अ फुल टाइम विद अस। सो इट्स ऑल अबाउट वेदर यू वांट टू और यू डोंट वांट टू। अगर आप अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं देन ऑब्वियसली बात है वो बेनिफिशियल होती है आपके लिए। ओके, तो ये यूजुअली कब स्टार्ट होते हैं ये बूट कैंप्स आपके? आई थिंक इट्स आफ्टर लाइक 2 to 3 months। लाइक रिसेंटली भी हमारा अगस्त में वाइंड अप हुआ है बूट कैंप, तो होपफुली मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। ओके, तो हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे जाते हैं, क्लाउड के बारे में बात कर लेते हैं। आप इंडस्ट्री में कौन से क्लाउड जो है वो ज़्यादा इन है, या आपको लगता है कि इस क्लाउड पे ज़्यादा काम हो रहा है तो हमें स्टूडेंट्स को इनकी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई गेस कौन सा क्लाउड बेस्ट है इस टाइम, ऑब्वियसली बात है। और एडब्ल्यूएस अगर आप मार्केट को देखें तो एडब्ल्यूएस मोस्टली लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। देन इट्स हुँ। कम्स माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एंड देन इट्स कम जीसीपी, देन other clouds as well, just like DigitalOcean or Linode as well. I'll suggest ke start with any cloud, right? But I'll start with Microsoft or AWS because मार्केट में इन दोनों क्लाउड की जॉब्स हैं। जीसीपी को लोग अभी इतना नहीं जानते हैं पाकिस्तान में, सो इट्स इतनी जॉब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एजर और एडब्ल्यूएस की काफ़ी जॉब्स हैं, राइट। सो स्टार्ट विद आइदर एडब्ल्यूएस और एजर। एजर थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, राइट। अगर आप एकदम से एजर पे आएंगे तो आपको टेक्निकली इसका पता नहीं होगा, देन यू विल स्टक। सो स्टार्ट विद एडब्ल्यूएस। अगर आपको थोड़ी टेक्निकली इसका पता है तो एजर से कर लें, वरना अगर आप प्योरली नॉन टेकी हैं तो आप एडब्ल्यूएस पे भी जा सकते हैं। ऑल्सो एजर और माइक्रोसॉफ्ट और एडब्ल्यूएस दे प्रोवाइड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एक ओवरव्यू आ जाता है कि व्हाट क्लाउड इज, देन यू कैन पिक व्हिच क्लाउड यू वांट, आप किसके साथ फिजिबल हैं। सो इट सो हाँ, तो आप ये कर सकते हैं। और बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट फ्री सर्टिफिकेशन भी ऑफर करता है कि आफ्टर 6 मंथ्स एक क्लाउड इवेंट होता है, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डू द सर्टिफिकेशंस। Yes. These big giant companies always offer some opportunities to the students right now, or is AWS का हो गया, Azure हो गया,
यूजली माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ आई एम द माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर वर्किंग एंड हमें ये जीरो के क्रेडिट्स मिलते हैं एवरी मंथ वी गेट $150 एंड हम उसके ज़रिए हम जो भी होस्ट करना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं Azure पे जो है ना वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं हमें वाउचर्स वगैरह भी मिलते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लेकिन बस यू हैव टू लुक फॉर इट ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे मेक एम्बेसडर्स दे फैसिलिटेट देम दे और जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशंस और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आप आराम से कर सकते हैं तो जस्ट अबाउट हाउ यू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ और इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करें जो कि मौजूद हैं लेकिन पीपल डोंट नो अबाउट इट सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट अच्छा Again, या yes, again opportunities market में है. They are limited, but opportunities हैं. But problem ये है कि student are not getting out of their comfort zone. They are not willing to explore other domains as well. वो अपने आप को upskill नहीं करना चाह रहे, वो नई tech में नहीं जाना चाह रहे. तो एक ये भी थोड़ी चीजें थोड़ी problematic हैं. ओके ओके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में हमने जैसे बात कर ली कि एक तो ये मसला है कि स्किल्स से रिलेटेड जो है वो इश्यूज है और क्या क्या इश्यूज आपको लगते हैं कि आजकल जो हमारे पास न्यू जनरेशन आ रही है जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें ये इश्यूज हैं और अगर वो ये करेक्ट कर लें तो दे कैन हैव अ बेटर पोजीशन इन द इंडस्ट्री व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट I think one of the most important thing जो किसी भी job role में matter करती है वो है soft skills. So a lot of people they lack the soft skills. They don't know how to communicate. They don't know how to present themselves. अगर आप उनकी resumes देखें तो वो ऐसा होता है कि बस रिज्यूमे भेज दिया आप पे एहसान किया है। तो ये चीज़ें काफ़ी लैक कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स को ये खुद देखना चाहिए कि थोड़ा प्रोफेशनलिज़्म आना चाहिए आप में। फ्रॉम द आई गेस यूनिवर्सिटी एक वो प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एक प्रोफेशनलिज़्म सिखाती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। लाइक मैंने स्टूडेंट्स के मुझे कुछ ईमेल्स आते हैं एंड दे डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर ईमेल, राइट? लिंक्डइन पे मैसेज आ रहा होगा तो दे डोंट नो कि कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोफेशनल के साथ। तो बहुत कैजुअल हो जाता है। तो सॉफ्ट स्किल्स पे काफ़ी फ़ोकस करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स का सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होता है और जब कंपनीज़ देखती हैं कि ओके इसका एक सॉफ्ट स्किल काफ़ी अच्छा है टेक्निकल स्किल सेट के साथ, तो वो उसको ऑब्वियसली बात है कि ऑफ़र देंगी लाज़मी सी बात। तो टेक्निकल स्किल सेट के साथ सॉफ्ट स्किल्स को भी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है काफ़ी। यस हम पिछली पॉडकास्ट में भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव दी सॉफ्ट स्किल्स इवन इफ यू इन टेक्निकल पर नॉन टेक्निकल दोनों ही जॉब रोल्स के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स जो है ना वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है और हम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ ला करते हैं कि दे कॉन्टैक्ट टूवर्ड्स आपने किसी भी प्रोफेशन को आप क्वेश्चन कर सकते हैं बट देयर इज़ अ वे अगर आप उनको जाके सिर्फ हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम इस तरह की बातें करेंगे तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड you can just ऑब्वियसली do that you please complete like आपने क्वेश्चन करना है तो write your question say hi assalamu alaikum whatever you introduce yourself then write the question and try to do it in a one message which I was suggested on and I always use this method and I always get the answer back even if that person doesn't even its DMs are closed but still I got the message back this is how you contact them ओके सो आपको भी बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे स्टूडेंट्स के तो आप ने फिल्टर आउट करते होंगे अच्छा किसको जवाब देना है किसको नहीं देना है क्या प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के वो इसमें आप क्या करते होंगे नहीं, आई डू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन जो भी मुझे कॉन्टैक्ट करके रीच आउट करता है लिंक्डइन पे मोस्टली, तो मैं उनको रीच आउट कर रहा होता हूँ, मैं बता रहा होता हूँ कि आपको क्या-क्या स्किल सेट चाहिए, क्या-क्या टूल्स आपको देखने चाहिए। तो आई एम ऑलवेज़ ओपन टू हेल्प द पीपल इन द कम्युनिटी। ओके दैट्स वेरी गुड ओके हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की भी हमने थोड़ी बहुत बात की है हमने क्या एडवाइसेस हमें ज़रूरी हैं इस फील्ड के इसमें आने के लिए ओके अच्छा अगर हमने वैसे ये बात कर ली है कि क्या चीज़ स्टैंड आउट करती है आपको क्या चीज़ों की प्रिपेयर करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए लेकिन फिर भी हम एक इस क्वेश्चन को दोबारा से ले लेते हैं कि व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर व्हेन यू आर इन एंट्री लेवल वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर रिज़्यूमे। इफ यू इफ यू आपकी रिज़्यूमे अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अगर आपकी रिज़्यूमे अच्छी नहीं होगी तो कोई भी एचआर आपको कॉल नहीं करेगा। तो रिज़्यूमे के बाद अगर आपने रिज़्यूमे अच्छी बनाई हुई है, प्रोफेशनल रिज़्यूमे है आपके पास और उसके बाद आपने जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्लाउड की 5 से 6 सर्विसेज़ लिखी हुई हैं, तो आपको उन्हें उनका पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एकदम सर्विस को यूज़ किया, आपने मेंशन कर दिया। तो मैंने भी काफ़ी एक चीज़ देखी है कि जब मैं इंटरव्यूज़ ले रहा था स्टूडेंट्स के फॉर अ ट्रेनी रोल, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ने चीज़ें लिखी तो हुई हैं,
राइट? कुछ स्टूडेंट्स का रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है, बट उन्होंने 1 दो दफ़ा सर्विस को यूज़ किया और उन्होंने रिज्यूमे में लिख दिया, और जब मैंने उससे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे कि फॉर एग्जांपल इस सर्विस को हम इस सिनेरियो में कैसे यूज़ कर सकते हो? सो दे वर ब्लंट, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। दे वर सेइंग व्हाटएवर कम्स इनटू देयर माउथ। तो सिनेरियो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए इंटरव्यू के लिए। ओके, आपको सर्विस का तो पता है, ठीक है, लेकिन उन्हें यूज़ कहाँ पे करना है, राइट? कौन सी सर्विस का मैं यूज़ करूँगा जो कि कॉस्ट एफिशिएंट होगी, कौन सी सर्विस होगी जो मुझे अच्छा बैकअप प्रोवाइड कर सकती है, कौन सी सर्विस होगी जो ऑप्टिमाइज़ कर सकती है मेरी वेबसाइट को। तो इन चीज़ों को भी आपको माइंड में रखना चाहिए। एक-एक सिनेरियो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ये क्वेश्चन्स नहीं होंगे कि अच्छा मुझे बताएँ कि व्हाट इज़ प्राइवेट आईपी और व्हाट इज़ दिस आईपी और वीपीसी क्या होती है। ये क्वेश्चन्स बहुत बिगिनिंग में आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन्स इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो आपको रेट कर रहे होता है इंटरव्यूअर, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कर रहा होता है कि आपके पास एक सिचुएशन आई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और ये डेली डेवऑप्स के टास्क में होता है। जैसे मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ और मेरे पास भी ऐसे डेली टास्क आते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है। अब मुझे इसमें सर्विस सजेस्ट करनी है, और मैंने अगर सर्विस सजेस्ट करनी है तो मुझे कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना होगा कि सर्विस कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इसका मेरी एप्लीकेशन के साथ कितना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए, इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इतनी कोई डैमेज ना करे मेरी एप्लीकेशन को। मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये अलाइन कर जाए, स्केलेबल हो, हाई टॉलरेंट हो, बैकअप उससे मिल जाए। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आई गेस स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव करने चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। यस। यस, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग जो कि आई थिंक हम मैंने ये ट्रेंड भी देखा है आजकल, जो कि अराउंड कि स्टूडेंट्स को जल्दी-जल्दी सर्विसेज़ सीखने का बहुत शौक रहता है कि अच्छा हमने ये अज़्योर भी आना चाहिए, हमें एडब्ल्यूएस भी आना चाहिए, हमें गूगल क्लाउड भी आना चाहिए, हमें मतलब सारी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, हमें सब कुछ आना चाहिए। बट अगर उसमें थोड़ा-सा हम डेप्थ में अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले तो दे आर, जैसे आपने मेंशन किया, दे आर ब्लैंक एट दैट पॉइंट। तो इसमें क्या सजेशन देंगे कि हमें किस तरह से, क्योंकि आप के पास टाइम लिमिटेड होता है ये ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी लेवल, तो आप सब कुछ नहीं सीख सकते। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें, आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ें और उसको किस तरह से, तो इसमें आपका क्या क्या कहते हैं इसी बारे में? वेल जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो काफ़ी यूज़ केसेस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अभी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूँ कि मेरे पास एक फ्रंट एंड वेबसाइट है और मुझे इसको डिप्लॉय करना है एडब्ल्यूएस पे, और मेरे पास सबसे कॉस्ट एफिशिएंट सर्विस कौन-सी होगी और मेरी वेबसाइट स्टैटिक है। सो व्हाट विल यू सजेस्ट? लाइक इफ यू Okay, वांट so टू से। I haven't been on the cloud, so I may not be able to answer. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मेरी एक फ्रंट एंड वेबसाइट है, इट्स स्टैटिक, Okay, राइट? okay, आई वांट टू बी आई वांट माय वेबसाइट टू बी कॉस्ट एफिशिएंट, राइट? और मैं चाहता हूँ कि okay, ऑप्टिमाइज़्ड भी। okay, So what are the options do I have in cloud? Maybe it's multiple options. I can go to S3 on AWS, I can go to EC2, I can go to ECS, I can pick any serverless service, I can go to Kubernetes. So I have a lot of options. बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा है, मेरी रिक्वायरमेंट के साथ कौन सा ऑप्शन मैप कर रहा है, इस चीज को फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस सिनेरियो में आई विल गो विद S3 बिकॉज आई नो इट्स वेरी चीपेस्ट, आई कैन इंटीग्रेट क्लाउड फ्रंट विद इट, और जो कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन और लेटेंसी को इंप्रूव कर देगा। तो इस तरह की सिचुएशंस को स्टूडेंट को टैकल करना आना चाहिए। वो तभी आप करेंगे जब आपको सर्विसेज की इन डेप्थ नॉलेज होगी, आपने यूज केसेस से गो थ्रू किया होगा, देन यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस, एल्स यू विल स्टक। और अगर आपने क्लाउड का, एक तो सबसे बड़ा इशू होता है कि जितने भी ट्रेनीज होते हैं उनको क्लाउड पे नहीं लेके जाते। उसकी रीजन है कि क्योंकि आपको बजट को भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट का इतना बजट नहीं होता, और आप कुछ अगर उसे एक्सपेंसिव सर्विस सजेस्ट कर देते हैं और उसका बजट आउट हो जाता है, तो वो आपके लिए है ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता आप पे। तो इन चीज़ों को भी स्टूडेंट्स को मैटर अपने माइंड में रखना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें लेना चाहिए। yes. I am not a cloud person. I अच्छा मैं अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई एम मोर सिक्योरिटी पर्सन। तो हम इसमें भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि डेवऑप्स एंड सिक्योरिटी, हाउ आप डेली डे टास्क में अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आता है या कोई भी सिक्योरिटी पर्सन आता है, तो आप किस तरह से कम्युनिकेशन चलती है या क्या ये प्रोसीजर होता है यूजली? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल डेवऑप्स में डेवसेकऑप्स का रोल होता है जो कि यस, सिक्योरिटी को कवर अप करता है, राइट? यस, फॉर एग्जांपल अगर समवन इज रीचिंग आउट टू मी रिगार्डिंग आई वांट टू इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ माय क्लाउड और द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो डाटा है वो उनका स्क्रिप्टेड होना चाहिए, ट्रांसलेट में भी, इनवेस्ट में भी स्क्रिप्टेड होना चाहिए, देन दे हैव यस,
enable cloud security services. फॉर एग्जाम्पल अगर माइक्रोसॉफ्ट में है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को enable किया हो। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो होता है वो आपको सिक्योरिटी जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो आपको हाईलाइट कर देता है। और इस तरह आप डीडोस अटैक्स से भी बच सकते हैं, वैफ enable कर सकते हैं क्लाउड में। Yes. और इसके अलावा जो आपकी पासवर्ड्स होते हैं आप इसमें उनको एड क्लाउड में कीवर्ड्स होते हैं जिनमें आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एप्लीकेशन आ रही है और मुझे अगर उसको सिक्योर करना है तो मैं मेक श्योर ये करूँगा कि जितने भी उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट ओपन टू पब्लिक, राइट? Yes. दे आर इन सम काइंड ऑफ वॉल्ट इन द क्लाउड, राइट? सेकंड मैं मेक श्योर करूँगा कि जितनी भी नेटवर्क आ रही है मेरी एप्लीकेशन पे, वो फ़िल्टर्ड हो। उसमें कोई वो मोस्टली एन्क्रिप्टेड हो, एसएसएल इनेबल हो, उसमें एचटीटीपीएस से सिर्फ़ ट्रैफ़िक आ रही है मेरे पास और अगर एचटीटीपी से भी आ रही है, तो मैं उसको डाइवर्ट कर दूँ एचटीटीपी पे। और मैं ये भी मेक श्योर करता हूँ कि मेरा जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे डीडोस अटैक्स इनेबल हों, क्लाउड शील्ड इनेबल हो, जितने भी अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, उनकी प्रिवेंशन के लिए मैं क्लाउड सर्विसेज़ का यूज़ कर सकता हूँ। और मेक श्योर ये भी करना होता है कि एक और इम्पोर्टेंट थिंग जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक आपको अपनी एक बेस्ट प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो एक आपको एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि अगर मैं अपनी क्लाउड की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ एप्लीकेशन की तो मुझे उन जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको चेकलिस्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने इसको भी इम्प्रूव कर दिया, इसको भी इम्प्रूव कर दिया। So that way you can improve your cloud security and the application of your security as well. One of the most important things जिसे मैं हर बार emphasize कर रहा हूँ वो होती है monitoring and logging. आपने एप्लीकेशन इनसाइट्स को इनेबल किया अपनी एप्लीकेशन के लिए, आपने ओपन टेलीमेट्री को इनेबल किया हो अपनी एप्लीकेशन के लिए ताकि जब भी कुछ इस तरह का इश्यूज हो तो आप उसको फौरन डिबग कर सकें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। Okay, very well. एक DevOps पर्सन को सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी बेसिक्स हैं उसका कितना परसेंट आइडिया होना चाहिए या क्या प्रेफरेंस होती है या फिर वो ड्यूरिंग द जॉब भी इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ड्यूरिंग द जॉब भी आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं जब आप एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं, बिग स्केल प्रोजेक्ट पे जब आप जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी क्लाइंट का एक मेजर कंसर्न होता है जब भी आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो एट दैट टाइम आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आई विल सजेस्ट कि अगेन मैंने जैसे पहले मेंशन किया था कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपना एक बेस्ट प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया होता है। सो यू मस्ट गो थ्रू दीज़ प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करते हैं कि एक आपने लार्ज स्केल एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करना है, आपने अपनी क्लाउड एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करना है और मेक श्योर करना है कि वो साइबर अटैक से बची रहे और उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ ना आए। So that way you can, go through the documentation, improve your cloud security and things. ओके। हाउएवर हम इसमें देख सकते हैं डेवऑप्स और डेवसेकऑप्स में कितना डिफरेंस है और एक कंपनी में ये जो रोल है वो किस तरह से डिफाइंड होके एक दूसरे के साथ काम कर रहा होता है या एक कंपनी में यूजुअली एक ही रोल होता है, इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा होता है? Well, it depends upon the product as well. For example, अगर एक प्रोडक्ट है जिसमें डाटा काफ़ी हाईली हमारे पास आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें डाटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, हमने एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर am I audible? Yeah. तो वो उस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट के फॉर एग्जांपल अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर एप्लीकेशन है वो हाईली डिपेंडेंट है डाटा पे तो ऑब्वियसली बात है मुझे अपने डेवऑप्स टूल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा डेवसेकऑप्स में और उसमें मुझे फिर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पे हाईली एम्फसाइज करना पड़ेगा, मुझे अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को लेना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि डाटा कहीं से भी ब्रीच ना हो। और इसके अलावा जो रोल्स होते हैं डेवऑप्स में वो काफ़ी ज़्यादा रोल्स आ गए हैं, अब तो क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा रोल्स आ गए हैं, जैसे डेवसेकऑप्स आ जाती है, क्लाउड इंजीनियर का रोल आ जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी का एक रोल है, क्लाउड नेटवर्क का एक रोल है। तो क्लाउड एज़ एन इज़ अ बिग डोमेन और वो काफ़ी डाइवर्स है, तो आप एक काफ़ी ज़्यादा उसमें रोल्स आ जाते हैं और डेवऑप्स डोमेन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, गुड। हम देख लेते हैं कि यूजुअली चैलेंजेस क्या होते हैं जो कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो हमें डे टू डे फेस करने पड़ते हैं डेवऑप्स और हाउ कैन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन? वेल डे टू डे जॉब टास्क ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एप्लीकेशन का एक नया वर्ज़न लॉन्च करना है, रिलीज़ करना है। सो हमने मेक श्योर करना होता है कि उसमें कोई बग ना हो। हम पहले उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स पे टेस्ट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जब ये नया एप्लीकेशन
का वर्जन डिप्लॉय होगा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इशू ना हो, हम लोग उसके मॉनिटर्स और जितने भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे भी वर्चुअल मशीन पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है और मुझे उसका उस पे अपना नया वर्जन लेके जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगा, नए वर्जन को डिप्लॉय करूंगा। मैं इसके मैट्रिक्स को चेक करूंगा, मैं इसके लॉग्स को देखूंगा, फॉर अ वीक मैं उसको मॉनिटर करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि ओके अब ये वर्जन प्रॉड पे जा सकता है। उसके बाद मैं इसको प्रॉड पे लेके जाऊंगा, एकदम मैं उसे प्रॉड पे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज जब मैं प्रॉड पे लेके जाऊंगा एक एप्लीकेशन के लाइव वर्जन को विदाउट एनी टेस्टिंग और कस्टमर्स इसको यूज करेंगे और उसमें अगर कोई बग आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो बिजनेस को काफी अफेक्ट करता है। इसके अलावा समटाइम्स इश्यूज ये आ जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको डिबग करना होता है। इसके अलावा यूजुअल डिप्लॉयमेंट्स होती है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई कि फॉर एग्जांपल आई वांट समथिंग एल्स, या फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर EC2 पे है तो मुझे इसको थोड़ा सर्वरलेस पे लेके जाना है, मुझे EC2 पे लेके जाना है, फिर हम उससे सजेस्ट करते हैं कि अच्छा ECS कॉस्ट ऑप्टिमाइज हम उस पे लेके जा सकते हैं, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। उस पे भी डिस्कशन होती है कि हमें ये फ्रॉम द कंसोल करना है या हमें कोई IAC टूल्स के लिए चाहिए होगा, या हम टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, या हम बिल्डिंग क्लाउड की जो IAC टूल्स होते हैं जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, एजर बाइसेप हो गया, उनको यूज करना चाहिए। सो इट मेनली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद द क्लाइंट, with the DevOps team as well, with a QA and dev team, कि आपने करना क्या एप्लीकेशन के साथ, बिकॉज अगर आप खुद चीज़ों को लेके चलेंगे वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो आपको तीनों पार्टीज को साथ लेके चलना होता है, जिसमें कस्टमर भी आ जाता है, देन इट्स कम द QA टीम, एंड देन इट्स कम द डेव टीम। उसके बाद ही आप सीवी एप्लीकेशन में चेंजेस कर रहे होते हैं। यस। ओके। हमने इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ भी जो है ना वो देख ली कि डेवऑप्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इन दिस होल फ्रॉम द डेवलपमेंट टू दिस प्रोडक्शन सिचुएशन। अच्छा, पहले तो हमारे पास यूजली डेवऑप्स के रोल डेवऑप्स के न्यू सिर्फ डेवलपमेंट के रोल्स होते थे, और ये डेवऑप्स का जो है ये रिसेंटली जो है ना वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आफ्टर दिस जॉब रोल हैज़ बीन क्रिएटेड? And what were the problems with the simple developer approach, and how DevOps has optimized this whole process? आई थिंक बिफोर डेवऑप्स जितनी भी मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड डिबगिंग थी, डिप्लॉयमेंट थी वर्चुअल मशीन्स पे, वो सब डेवलपर कर रहा होता था, एंड दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? सो अब डेवऑप्स के रोल की वजह से ये हुआ है कि डेवलपर से वो एक बर्डन हट के, सो नाउ डेवलपर कैन ओनली फोकस ऑन द कोडिंग पार्ट। और डेवऑप्स जो रोल है वो एप्लीकेशन को मॉनिटर कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, उन चीज़ों को मैनेज कर देता है। वो एक डेवलपर का जितना भी एक बर्डन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो डेवलपर अब बस फोकस कर रहा होता है अपनी कोडिंग पे, और बाकी जितना भी टास्क है कि एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगी, कैसे डिप्लॉय होगी, कैसे मीटर होगी, वो सब डेवलपर का टास्क आ जाता है। तो इससे ये हुआ है कि एक जो मार्केट में रिलीज़ जा रही होती है किसी भी नई एप्लीकेशन, वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले रिलीज़ जाती थी आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, तो अब वो विदिन अ वीक्स जा रही होती है। तो इस तरह जितने भी डिबग्स आते हैं करंट वर्जन में, आप उसको क्विकली रिज़ॉल्व कर सकते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस से काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, व्हिच इज़ रियली गुड फॉर द बिज़नेस एज़ वेल। So yeah, Yes, DevOps is really helpful for developers as well. that's really good, and this has really जैसे कि बात की कि ऑप्टिमाइज्ड और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतर वर्जन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी जो है ना वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स की बात कर लेते हैं ताकि हम, बिकॉज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडिंग, कि अब व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स एंड क्या ट्रेंड्स न्यू आ रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ इट्स गोइंग ऑन? I think the future is bright of DevOps in the next coming 5 to 10 years. लेकिन उसमें ये है कि आप you have to be diverse, right? For example, अगर आप अभी DevOps में है, so you can't say कि मुझे क्लाउड की सर्विस का नहीं पता है, उस सर्विस का नहीं पता। For example, if I'm a cloud DevOps engineer, मुझे ए सर्विस का भी पता होना चाहिए, मुझे नेटवर्किंग सर्विसेज का पता होना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी सर्विसेज का पता होना चाहिए। So I should always be open for the change. I should always be open for learning new things. जैसे अभी Microsoft Azure है, उसमें OpenAI का काफ़ी काम है। राइट, एंड अब हर क्लाउड जो है वो एक और अडॉप्ट कर रहा है, तो मुझे उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि अच्छा यार आई एम जस्ट अ क्लाउड इंजीनियर और मुझे बस इन 4-5 सर्विसेज के अराउंड ही रिवॉल्व करना है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो यू शुड ऑलवेज़ बी ओपन टू लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक स्टैक, ठीक है? दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव इन आईटी इंडस्ट्री। Oh, yes. Uh,
एआई के बाद डेवऑप्स में क्या चेंज आया है और क्या चेंजेस फ्यूचर में जो है ना वो एक्सपेक्टेड है? आई थिंक एआई का जो चेंज है वो इट्स काइंड ऑफ इफेक्टिव फॉर एवरी डोमेन इन द आईटी ऑब्वियसली। यस। बट एक जो डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स पर्सन मुझे जो ये हेल्पफुल की है वो ये की है कि ऑब्वियसली बात है, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ आर एंड डीज ऑन द थिंग्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी आर एंड डी कर रहा हूँ, तो चैट तो ए हेल्प इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। मेरा टाइम काफ़ी बचाती है। जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड टेल हिम कि मुझे इस सर्विस के बारे में बता दो या उसके बारे में बता दो, तो मुझे काफ़ी अच्छे एक ओवरव्यू मिल जाता है और मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी ए इज गुड, right? In terms of scripting, you can also always go to ChatGPT and ask for the scripts. You can always go to ChatGPT and ask for the better suggestions. But again, it's not the perfect suggestions that AI gives to you. At the end of the day, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है, right? तो quite helpful है AI, right? DevOps में भी वो आपको वो जितने भी डेली टास्क होते हैं उसमें quite helpful होती है। तो I guess आपको AI सर्विसेज को भी यूज बनाना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लाउड पे हैं, जैसे आप क्लाउड पे भी एआई सर्विसेज काफ़ी आ चुकी हैं, जैसे ओपन एआई आ गया है एज़्योर एआई में, और सेज में खड़े एडब्ल्यूएस में, और जेमिनी है आ गया उधर जीसीपी में। तो आपको उन सर्विसेज को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि फॉर एग्जांपल कल को आपके पास एक चैटबॉट का काम आता है और आपके प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहते हैं कि ये चैटबॉट हमें डिप्लॉय करना है, हमने क्लाउड पे करना है, हमने क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है। सो यू मस्ट नो अबाउट कि क्लाउड की सर्विसेज क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा यू कांट रियली डू एनीथिंग। तो आपको उन चीज़ों को भी देखना चाहिए क्लाउड में। एक और चीज़ मिसकंसेप्शन है कि जितने भी डेवऑप्स पर्सन होते हैं, उन्हें लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन पे डिप्लॉय होता है, सर्विसेज पे डिप्लॉय उनका पता होता है। जैसे देयर आर सम पीपल हू नो अबाउट EC2 एंड अदर सर्विसेज जो एक एप्लीकेशन पे डिप्लॉय करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन मैं उन्हें एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर कंसीडर करता हूँ। डेवऑप्स में एक और रोल भी आ जाता है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स कहते हैं, जो सिर्फ एप्लीकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। वो बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे होते, जैसे ए को वो नहीं देखेंगे, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को नहीं देखेंगे, नेटवर्किंग को इतना नहीं देखेंगे। तो अगेन यू हैव टू बी डाइवर्स एंड यू हैव टू ओपन फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड न्यू सर्विस इन द क्लाउड। Okay. Okay, good. Um, so far so good. Okay. मिसकॉन्सेप्शंस का थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं कि मिसकॉन्सेप्शंस क्या है डेवऑप्स के बारे में। और यस। और इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिसकंसेप्शन जो सब में होती है, देर डेवऑप्स में कोडिंग नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू डेवऑप्स के उसमें कोडिंग है, सो लेट्स गो इनटू दैट। सेकंड ऑफ ऑल ये होता है कि इट्स ऑल अबाउट ऑटोमेशन, राइट? इट इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन, बट यू हैव टू थिंक कि कहाँ पे ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ पे ऑटोमेशन नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप हर चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपको आफ्टर 6 मंथ्स रिक्वायर्ड है, 7 मंथ फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। सेकंड ऑफ ऑल एक में ये मिसकंसेप्शन होती है कि या ये भी मिसकंसेप्शन होती है कि मैंने एक क्लाउड को सीख लिया है, मैंने 3-4 चीज़ें इसमें नेटवर्किंग मुझे आ गई है, मैंने एक सीएसवी टूल सीख लिया है, एक मॉनिटरिंग टूल सीख लिया है, तो आई एम गुड फॉर द डेवऑप्स रोल। नो, यू आर नॉट गुड फॉर द डेवऑप्स रोल बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ सीएसवी टूल्स, ठीक है? समटाइम्स प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस सीएसवी पे नहीं जाना है, वो उस किसी और सीएसवी पे जाना है। सो यू हैव टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ टूल्स। अगर वो सीएसवी के टूल्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। देन मॉनिटरिंग टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स में भी थर्ड पार्टी टूल्स आ जाते हैं, सो यू शुड ऑलवेज लर्न थर्ड पार्टी टूल्स एंड क्लाउड प्रोवाइडेड टूल्स एज वेल। तो एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि बस अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया तो मुझे बस उसमें क्लाउड सर्विसेज को यूज करना है, मैं थर्ड पार्टी को यूज नहीं कर सकता। तो एक ये भी मिसकंसेप्शन है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अगेन मैं अपनी पुरानी बात की रिपीट करूंगा कि मैंने 4-5 चीजें सीख ली हैं, इसके अलावा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बिकॉज डेवऑप्स अगेन इमर्जिंग फील्ड है, डेली बेसिस पे इवॉल्व कर रही है, तो आपको नई चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये आई गेस 3 to 4 मिसकंसेप्शंस हैं जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किए हैं। यस। ओके। हमारे पास जो सीएसईडी पाइपलाइन आती है, या मेजरली हम कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं हमारे ऑटोमेशन के लिए, या हमारे पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए मेजर टूल्स कौन से इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं?
I think it again depends upon the client requirement, project requirement क्या है. For example, अगर client चाहता है कि मुझे within the cloud services चाहिए, वो obviously बात है, we will suggest them कि हमारे पास within the cloud services भी हैं, हमारे पास third party भी हैं. तो अगर जो client है वो ज़्यादा security को अपने mind में रख रहा है, उसका concern security है, तो then we will suggest कि अच्छा obviously we go with the within the cloud जो CI/CD tools हैं, जैसे Microsoft में Azure DevOps आ जाता है, AWS में Azure AWS Code Pipelines आ जाते हैं, so we can go for that. लेकिन अगर उसकी ऐसा उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, देन वी हैव गिटहब एक्शंस, वी हैव गिटलैब्स, वी हैव बिटबकेट, वी हैव जेनकिंस. अगेन वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फिजिबल है, कौन सी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं. वो आपको तभी पता लगता है जब आप प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स का पता होता है, देन यू कैन मेक ईजी डिसीजंस. Yes. During और यूनिवर्सिटी GitLab और GitHub इस तरह के चीज़ें तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें अगर लाइक GitHub एक्शंस को भी यूज़ करना चाहिए जब हम कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उसे किस तरह से बेहतर तौर पे, ताकि हम पाइपलाइनिंग को समझ सकें, हम इस तरह के जो हमारे पास फीचर्स हैं ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स को सीख सकें, इसमें बेहतर तौर पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? I would suggest start with GitHub. GitHub and GitHub Actions वो काफ़ी सिंपल होता है, इसकी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, स्टूडेंट्स इजीली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और अगेन वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, देन आप किसी भी टूल पे जाएं, वो आपके लिए बहुत ईजी होता है. Yes. Okay. Usually, best practices क्या होती हैं when we are suppose we have created a project and we want to like push it to our GitHub. So basically, what usually students do, they like push the whole project. Now everything on the project is now on GitHub, and the security is compromised, and they don't care about such things. So what best practices should be taken so that you can understand these topics of security or these concepts from the very start? Well, yeah. Well, first of all, whenever you push your code into the GitHub, मेक श्योर करें कि उसमें कोई भी सिक्योरिटी की ना हो, कुछ उसमें कोई भी ऐसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ना हो जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. सो डोंट पुश योर एनवायरनमेंट फाइल इनटू द गिटहब. दिस इज माय फर्स्ट सजेशन. सेकंड सजेशन इज ऑलवेज रन अ कोड एनालाइजर, जस्ट लाइक सोनार क्यूब. सोनार क्यूब आपके कोड को एनालाइज करता है, मेक श्योर करता है कि उसमें कुछ बग्स तो नहीं है, सिंटेक्स तो नहीं है. वो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करता है, कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. तो इस तरह के टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए जो कि आपकी कोडिंग को बेहतर करते हैं, आपके वर्क को हेल्पफुल करते हैं. एक और चीज़ जो आपको मेक श्योर करनी चाहिए कि डायरेक्टली आप मेन ब्रांच में अपना कोड पुश मत करें. फॉर एग्जांपल ये बहुत गंदी प्रैक्टिस होती है कि मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो उन्होंने एक मेन ब्रांच बनाई है, उसको ही पुश एंड पुल करके प्ले कर रहे होते हैं. तो दैट्स अ रियली बैड प्रैक्टिस. इंडस्ट्री में ये होता है कि दे हैव अ वन ब्रांच व्हिच इज़ फॉर द प्रोडक्शन. और अगर आपने कुछ फीचर अपने कोड में अडॉप्ट करना है या कुछ फिक्स करना है, तो हम इस मेन ब्रांच का क्लोन बनाते हैं, राइट. देन उसमें हम लोग फिक्स करते हैं या कुछ एडअप करते हैं, देन हम उसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं. जब कोई सीनियर डेवलपर्स पुल रिक्वेस्ट को देखता है, उस कोड को एनालाइज करते हैं, देन उसको हम लोग मेन में पंच मर्ज करते हैं. तो ये एक वर्कफ्लो होता है इंडस्ट्री में. इसके रिगार्डिंग भी एक कॉन्सेप्ट है गिटऑप्स का, जो कि मेक श्योर करता है कि कोई भी मेन ब्रांच है हमारी, वो इतनी भी पोल्यूटेड ना हो अनवांटेड कोड के साथ. तो एक चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए. सेकंड, एक और चीज़ रखनी चाहिए कि अगर आपका कोड जो है इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू, तो रिपो को प्राइवेट रखें. डोंट मेक इट ओपन फॉर एवरीवन. और कंट्रीब्यूटर एक्सेस होती है, सबको एक्सेस नहीं देनी. फॉर एग्जांपल आपकी अगर प्राइवेट रिपो है, अगर आपने लोगों को अपनी रिपो में इनवाइट करना है ताकि वो कोड को अडॉप्ट कर सकें, या आपने कंट्रीब्यूट के लिए बनाना है किसी को, तो लीज प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड में, डेवॉप्स में, कि आपको लीज एक्सेस देनी चाहिए. सबसे ज़्यादा उसको एडमिन की एक्सेस नहीं देनी चाहिए. एक लीज कॉन्सेप्ट का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्यूअर की एक्सेस आप दे सकते हैं, रीडर की एक्सेस दे सकते हैं, कंट्रीब्यूटर की एक्सेस दे सकते हैं. तो वो आपको एक लिमिट कर देता है जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. तो इतनी सा चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए. Yeah, that's the most important things. और ये चीज़ें, ये हैबिट्स या ये हमें जो है ना वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अगर हम अडैप्ट करें, तो हमें इंडस्ट्री में जो है ना वो एंटर होने में, या हम जब इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एज स्टूडेंट. ठीक है, हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम लास्ट एडवाइस ले लेते हैं कि व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू द स्टूडेंट्स? It can be general, it can be DevOps based, whatever. What do you think? आई थिंक मैंने काफ़ी डेवऑप्स के एडवाइसेस दे दिए हैं, सो आई विल गो विद द जनरल एडवाइस.
My general advice is don't miss out on the opportunities because आपको नहीं पता कि next opportunity आपको कब मिलेगी. Always open for the change and get out of your comfort zone as soon as possible if you want to do something. Yeah, that's the one of the key things. Or during your university, it's very important that you adapt. You are learning also, but you're also adapting to the changes and trends, and you see okay, what is happening on the industry. For these purposes, we as हम Microsoft के chapters हैं, different जो ये global chapters हैं, we try to conduct these sessions so that we can call out or these professionals, and then the students can interact with them so that they know what is happening in the industry. And same goes with the MLCUT लाहौर का ये एक initiative है of this podcast जिसमें हम जो है ना वो every week we call out new guests related to different topics ताकि हम तमाम domains को जितनी भी हम cover कर सकते हैं cover कर सकें. Yes. Thank you so much for this amazing conversation. I think our students will be get benefits of this, and yeah, we will be ending this on this note of the advice that you given to us. And yeah, Allah Hafiz. All right. Allah Hafiz. Thanks for having me.